Let's open our Bibles to Matthew chapter 7. आइए हम आज के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 7 को खोलेंगे And let's read verse 13 and 14. और हम पद 13 और 14 पढ़ेंगे। Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Let's hear it in Hindi also. सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं वे जो उसे पाते हैं। May God bless His word to us. परमेश्वर अपने वचन को आशीष प्रदान करें। When I was in the call center, I was in the sales department, unfortunately. जब मैं कॉल सेंटर में था तो मैं सेल्स डिपार्टमेंट में था, And we were taught many techniques, और हमें बहुत से तकनीक सिखाए गए थे, and we were talking with the UK clients. और हम जो विदेश में जो हमारे क्लाइंट्स हैं हम उससे बात कर रहे थे। We were taught how we should identify a need that the customer has. और हमारा कार्य यह था कि हम पहचाने कि उनकी ज़रूरत क्या है। Just imagine we have to paint a scenario for the customer. हम जो जो ग्राहक है उसके सामने हमें एक चित्रण को प्रस्तुत करना था। Imagine you're driving in England and it's a snowy day and your car breaks down. कल्पना करें कि इंग्लैंड में बर्फबारी हो रही है और मौसम बहुत ख़राब है। What will you do if you're stranded all alone? आप क्या करेंगे जब आप वहाँ पे अकेले हैं? And then we give the offer, it is called the pitch, that I have some policy for you. और वहाँ पे हम अच्छे ऑफर्स देते हैं कि हमारे पास आपके लिए कुछ अच्छा पॉलिसीज़ है। And the sales people call it the pitch, giving the pitch so that the customer seals the deal. और जो सेल्स के जो लोग होते हैं उसे द पिच कहते हैं, ताकि जो ग्राहक है उस पॉलिसी को ग्रहण करे। Well, Jesus is not a salesman. प्रभु यीशु मसीह सेल्समैन नहीं है। He is the great shepherd king. वह महान चरवाहा और राजा है। From eternity past, he has agreed to be the savior and mediator of his people. अनंत काल से उसने उसके लोगों के लिए उद्धारकर्ता के रूप में उसने अपने आप को लिया है। He has come and for 33 years he has seen what is going on in Israel. वह इस जगत में आया, उसने 33 वर्षों तक देखा कि इस्राएल में क्या चल रहा है। And he knows the superficial righteousness of the day. और वह उस समय का जो बहुत ही बाहरी धार्मिकता थी वह उसने उसको देखा। And he knows that he is the one who has life from above to give people. और वह यह भी जानता था कि केवल उसी के पास है जो स्वर्गीय जीवन लोगों को दे सकता है। And how wonderfully last time he summarized the entire law and the prophets. और पिछले बार कितने खूबसूरती के साथ उसने भविष्यवक्ता व व्यवस्था की शिक्षा हमें दी। Now he is not going to do any more teaching as such. अब वह इसके आगे इस प्रकार की कोई शिक्षा को नहीं देगा। In Matthew 7 from verse 13 onwards, he is going to end the sermon with a powerful call to do something. मत्ती 7 उसके 13 और 14 में वह एक बहुत ही ज़रूरी बुलाहट करता है कि हम कुछ विशेष और महत्वपूर्ण करें। It's in English we call it a summons. हम इंग्लिश में उसको समन बोलते हैं कि आदेश देना या उसको बुलाना। The difference between a lecturer and a preacher hopefully is this. जो एक शिक्षक है और जो एक प्रचारक है उसके बीच में जो अंतर है वो यह है। In the seminary the lecturer just gives information and he goes to the next class. जो सेमिनरी है वहाँ पर जो शिक्षक रहता है वह आपको जानकारी देता है और अगली कक्षा में जाता है। But Jesus is the preacher of preachers. और लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रचारकों का प्रचारक है। And after giving and showing what true righteousness is, और यह दिखाने के बाद कि सच्ची धार्मिकता क्या है, after teaching the way of his kingdom,
अपने राज्य के मार्ग के विषय में दिखाने के पश्चात He is going to call for our will, He's going to call for our heart. वह हमें बुला रहा है अपना हृदय देने के लिए, अपना मन देने के लिए। And so we have this great summons in the Sermon on the Mount. तो हमारे सामने ये महत्वपूर्ण आदेश है आज की सुबह। If you see in verse 13, the great command or the great call is enter by the narrow gate. और पद 13 में यदि हम देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण आज्ञा है कि हम सकरे फाटक से प्रवेश करें। It's a command, it's not a suggestion. यह एक आज्ञा है, यह एक विचार नहीं है। It's not a good advice from a friend. यह एक अच्छी उपाय नहीं है एक दोस्त के द्वारा। You take it or you leave it. कि आप उसे या तो ले या छोड़ दे। As the people are hearing this great sermon, जब लोग इस प्रचार को सुन रहे हैं, they have been exposed that they don't have the real righteousness that exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees. और उन्होंने इस बात को पाया है कि उनमें उतनी धार्मिकता नहीं है कि वो जो फरीसी हैं उनसे ज़्यादा उस धार्मिकता उनके पास नहीं है। And in light of that, Jesus is saying, enter by the narrow gate. और इस प्रकाश में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। It's a call from the King himself. और यह एक राजा के द्वारा उसके लोगों को बुलाहट है। This entering, this offer is as long as we are alive on this earth. और यह जो ऑफर है वह तब तक ही सीमित है जब तक हम इस जगत में जीवित हैं। But the sad thing is we think that we have 70, we have 80, we live till 90. पर दुखद बात यह है कि हम यह विचार करते हैं कि हम 60 या 70 या 80 वर्ष जीवित रहेंगे। Just the other day I read about a 25-year-old young man from India who went to study abroad and suddenly died. कुछ ही दिन पहले मैंने एक समाचार को सुना कि एक 25 वर्षीय जवान लड़का विदेश गया और वहाँ वह खत्म हो गया। We also have read about how some teenagers go for swimming in the canal or the river and they die. हम यह भी समाचार सुनते हैं कि जब जवान लोग नदी में जाते हैं वहाँ पे वह डूब जाते हैं और मर जाते हैं। The Bible says it's appointed for man to live once and then face judgment. वचन कहता है कि एक बार आपको जीवित रहना है, फिर आपके लिए न्याय निश्चित है। And that today is the day of salvation. कि आज उद्धार का दिन है। And so we should not think of this command as very lightly this morning. तो यह आज्ञा को हम हल्के रीति में नहीं ले सकते। Enter where is not written here. कि प्रवेश करना यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ लिखा नहीं है। But in light of this Sermon on the Mount and what Jesus was proclaiming, he was proclaiming the kingdom of God. लेकिन इस पहाड़ी उपदेश के संदर्भ में यदि हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह उसके राज्य का प्रचार कर रहे हैं। Even before this Sermon on the Mount, he began saying, "Repent, for the kingdom is here." और इस संदेश के पहले भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। And so here is the great announcement from Jesus, enter into the kingdom by the narrow gate. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक विशेष आज्ञा है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। There is a urgency, there is a plea from the king himself. यहाँ पे यीशु मसीह एक जल्दबाजी दिखा रहे हैं। And this entering theme is very rich throughout the Bible. और ये प्रवेश करने की जो एक प्रवेश करने का जो विषय है वह पूरे वचन में पाया जाता है। Because of sin, Adam and Eve, they exited from the presence of God. पाप के कारण आदम और हवा को जो गार्डन है उससे बाहर निकाल दिया गया था। Then in the Bible we see there is a city of refuge. और फिर बाइबल में हम एक बाहरी लोगों के लिए जो स्थान रखा जाता है उसके विषय में भी हम पाते हैं। If somebody is cutting a tree, यदि कोई एक पेड़ को काट रहा है and his axe head, it slips and it goes and kills somebody. यदि उसका जो उस कुल्हाड़ी का जो सामने का हिस्सा यदि वो टूट के किसी को लग जाता है, it was an accidental death.
वह एक अपघातित। अपघातित घटना है। And God knows that the relatives will want to take vengeance. और परमेश्वर जानता है कि लोग यहाँ पर बदले की भावना रख सकते And हैं। so God told that you build cities of refuge. इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम सुरक्षा और या एक विशेष प्रकार के शहर का निर्माण And करो। you can imagine this man, this accident has happened through him, and how he longs and he doesn't delay, he wants to enter into the city of refuge. और आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जो हादसा हुआ है उसके बाद वह मनुष्य समझ नहीं पा रहा, इसलिए वो चाहता है कि वो जल्दी से उस शहर में प्रवेश Perhaps करे। he doesn't even sleep over it in the night. वो संभव है कि रात में सो भी नहीं पाता। He packs his bags because he knows that there is a danger to him. वह अपना सामान को बांधता है और उस शहर की ओर भागता है क्योंकि जानता है कि अभी खतरा मंडरा रहा है। The only security he knows he will find for his life is into the gates. वह जानता है कि केवल एक वही नगर है जहाँ पर उसको सुरक्षा मिल सकती है। And so also our Lord Jesus calls himself as the door. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं को वह दरवाजा या वह दरवाजा के रूप में प्रस्तुत करता है। In John chapter 10 verse 9 he says, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved. यूहन्ना अध्याय 10 में वह बोलता है कि मैं वह दरवाजा हूँ जिसके द्वारा तुम प्रवेश करने पाओगे और उद्धार को पाने पाओगे। We must realize at the cross, as Jesus offered himself, the way into God's presence was opened for us. और हमें यह भी स्मरण करना चाहिए कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पे अपने बलिदान को दिया तो उसने हमारे लिए उस स्वर्गीय राज्य को खोल दिया। We can say that he himself and all that he has accomplished is the way for us to go to the Father. और हम यह कह सकते हैं कि जो कुछ उसने किया और जो कुछ उसने हमारे लिए प्रस्तुत किया वह सभी हमारे लिए एक मार्ग के रूप में है। And we run from the city of destruction and we run to the city of joy. और हम एक विनाश के शहर से दूर भागते हुए हम एक आनंद के शहर की ओर दौड़ते हैं। And Jesus said in John 14 verse 6, I am the way, the truth and the life. यूहन्ना 14 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मार्ग, जीवन और सत्य हूँ। No one comes to the Father except through me. कोई भी पिता के पास मेरे सिवाय नहीं पहुंच सकता। I hope you realize how singular that verse is. और मैं आशा करता हूँ कि आप समझने पा रहे हैं कि कितना सीमित यह मार्ग है। He doesn't say I am a way among many ways. वह यह नहीं कहता कि अनेक मार्गों में से भी मैं एक मार्ग हूँ। He says I am the way, the truth and the life. वह कह रहा है कि केवल मैं ही वह मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। And so some of us who have been trained to listen that salvation is by sovereign grace alone. और हम में से वे लोग जो आदी हैं सुनने के कि केवल प्रभु यीशु की केवल अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। We look at verses like this and say, is this talking about some kind of everybody has a freedom to make a decision and we choose God? और जब इस तरह के पद को हम पढ़ते हैं तो हम विचार करते हैं कि क्या कुछ ऐसा है कि हम परमेश्वर का चुनाव करते हैं या हम कुछ करते हैं। A passage that really helps me is John chapter 1. और जो हिस्सा जो मेरी सहायता करता है वो यूहन्ना उसका अध्याय 1 है। We all know John chapter 1 and verse 12. यूहन्ना अध्याय 1 उसका पद 12। But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। And so we are caused to receive him and we are involved. We are not robots. तो हमें प्रेरित किया गया है कि हम इसमें शामिल हो, हम एक मशीनी मानव के जैसे नहीं हैं। But look at the very next verse. इसी के बाद का हम पद देखेंगे। Children of God who were born not of blood nor the will of the flesh
nor the will of man, but of God. वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। Not of the will of your own flesh or of your parents. आपकी स्वयं की इच्छा या आपके माता पिता की इच्छा के कारण नहीं। So we receive because by His Spirit He has caused us to be born again. तो हम मसीह को ग्रहण करते हैं क्योंकि उसकी आत्मा हमें प्रेरित करता है कि हम उसको ग्रहण करें। In Psalm 110 it says, your people will receive you freely on the day of your power. भजन संहिता उसके 110 में भजनकार कहता है कि आपके दिन में आपके लोग आपको स्वीकार करेंगे। So behind this entering in is the great sovereign grace and mercy of God. तो इस प्रवेश करने के पीछे परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया है। Behind this entering in is this irresistible grace that wins us on the day of His power. इस प्रवेश करने के पीछे एक ऐसा अनुग्रह है जिसे हम नकार नहीं सकते और जो हमें प्रेरित करता है कि हम इस फाटक में प्रवेश करें। But nevertheless we proclaim His word as it is. पर जैसा वचन है हम उसे वैसा भी प्रस्तुत करते हैं। Knowing that God is the one who uses His word to make alive His people. यह जानते हुए कि यह वचन है जो जिसका परमेश्वर प्रयोग करता है लोगों को जीवित करने के लिए। And so the great command, the great summons by Jesus is enter by the narrow gate. तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा यह है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। Enter into the Lord Jesus Christ. कि हम प्रभु यीशु मसीह में प्रवेश करें। Just like Noah and his family by faith they entered into the ark. जिस रीति से नोआ और उसका परिवार उस जहाज में प्रवेश किया था। Don't try to figure out all the doctrines and then I will enter in. बाइबल के तमाम सिद्धांतों को पहले समझ लेना और फिर उस फाटक में प्रवेश करना, यहाँ ऐसा नहीं कहा गया। First I'll be able to articulate the Trinity and then I will enter कि in. पहले मैं त्रिएक परमेश्वर को समझूंगा फिर मैं उस फाटक से प्रवेश करूंगा। Realize that the destroyer of your soul is chasing you. हम इस बात को समझे कि जो आपके आत्मा का जो विनाशक है वह आपका पीछा कर रहा है। Remember that the curse of the law has the sword in its hand. जो व्यवस्था का जो श्राप है वह आपके ऊपर लगा हुआ है। And Jesus is the only city of refuge for us. और केवल प्रभु यीशु मसीह वह नगर है जहाँ पे हम सुरक्षा को प्राप्त कर He's सकते the हैं। only door. वह एकमात्र फाटक है। He's the only mediator given under heaven. वह एकमात्र मध्यस्थ स्वर्ग और इस जगत के बीच में। The only name that saves. वह केवल एकमात्र नाम है जिसके द्वारा हम बचाए जाते हैं। And then we realize in these verses there is a narrow gate and there is a wide gate. और हम इस हिस्से में यह भी पाते हैं कि एक सकेत फाटक है और एक चौड़ा फाटक है। And naturally we think why to worry about the narrow gate if there is a wide gate. और स्वाभाविक रूप से हम यह सोचते हैं कि जब हमारे पास चौड़ा फाटक है तो हम सकेत फाटक के बारे में क्यों सोचें। And so Jesus not only gives us the command but he gives us his motivation to enter the narrow gate. तो प्रभु यीशु मसीह ना केवल आज्ञा देते हैं लेकिन वह हमें प्रोत्साहन भी करते हैं कि हम आखिर क्यों सकेत फाटक से प्रवेश करें। The first motivation he says, notice in verse 13, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction. और वहाँ पद 13 में कहता है क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है। So the first motivation is a negative and a sobering motivation. तो पहला जो प्रोत्साहन है वह एक नकारात्मक है और बहुत ही गंभीर विचार यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह रखते हैं। I'm telling you to hurry into me and my person and my work. मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दबाजी करो ताकि तुम मेरे पास पहुँचो और मुझको चुनो। Because there is another gate. क्योंकि एक दूसरा फाटक भी है And that gate is wide. और वह फाटक चौड़ा है And the way over there is easy. और वह जो मार्ग है वह सरल है। And he is asking us to consider that it leads to destruction और ultimately. वह हमें विवश कर रहा है यह सोचने के लिए कि वह मार्ग हमें विनाश को पहुंचाता As है। you read the Bible, you see how inviting that is. और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यह कितना एक
हमें आमंत्रण। आमंत्रित कर रहा है। The wide gate saying, "Come, we have lot of place to enter in." जो चौड़ा फाटक है वह हमें कह रहा है कि आओ आओ, मेरे पास बहुत सा स्थान है। And not only a wide gate, but we have a broad way. You can walk in any of the lane. We have a 6-lane highway. और ना केवल हमारा फाटक चौड़ा है, लेकिन मार्ग भी चौड़ा है जहाँ पे आप बहुत आसानी से चल सकते हैं। And so, before we jump, and we have seen in the childhood perhaps a picture showing the broad way and the narrow way. और इससे पहले कि हम यह देखें कि हमने बचपन में चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग का चित्र को देखा होगा। And in that broad way, there is gambling, और उस चौड़े फाटक में लोग जुआ खेलते हैं, there is smoking and drugs, सिगरेट पीना या शराब पीना, and there is alcohol. ड्रग्स को लेना, There's all kinds of overtly bad things. और हर प्रकार के जो दुष्ट चीजें हैं उस चौड़े फाटक में देखने पाते हैं। But we forget the immediate context. पर हम जो तुरंत का जो यहाँ पे ये संदर्भ है हम उसको भूल जाते हैं। In chapter 5 and 6 and 7, Jesus has not mentioned once about smoking or drinking. लेकिन 5-6 अध्याय को जब हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह शराब या सिगरेट पीने के संदर्भ में कुछ नहीं कहते। There are people sitting there who consider themselves as the children of Abraham. वहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने आप को अब्राहम का पुत्र समझते हैं। There are religious leaders there who think that if I am not a VIP in heaven, then who is a VIP in heaven? वहाँ पे ऐसे विशेष धार्मिक लोग हैं जो समझते हैं कि यदि मैं स्वर्ग में विशेष आदमी नहीं हूँ तो और कौन हो सकता है। And so this broad way then is a way of religion. तो यह जो चौड़ा फाटक है वह एक धर्म का चौड़ा फाटक है, The religion of autonomy. जहाँ पे एक स्वतंत्रता का धर्म है। The way which says that all road leads to Rome or God. एक ऐसा धर्म जो कहता कि हर प्रकार के मार्ग स्वर्ग को पहुंचाते हैं। And there are some bad tendencies in you, but you are basically good. और भले ही आप में कुछ कुछ बुरी आदतें हैं, लेकिन आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। And if you try hard enough, you will make it to the end. और यदि आप बहुत कोशिश करेंगे तो आप अंत तक पहुंचने पाएंगे। And so we see that in the context there are people who love to give. और इस अध्यायों के संदर्भ में यदि हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि ऐसे लोग भी हैं जो दान देना पसंद करते हैं, Who love to fast. जो उपवास रखना पसंद करते And हैं, they have a timetable of daily prayer. और उनके पास प्रार्थना करने का दैनिक जो समय है। And the boast in their life is, we are the chosen of God, we are the children of Abraham. और उनके जीवन का जो घमंड है कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। And then they look at the morals of the Bible only outwardly. और वे बाइबल की नैतिकता को केवल बाहरी रूप से देखते We हैं have never murdered anybody. कि हमने कभी किसी का खून नहीं किया, We have never committed adultery in action. कि हमने कभी भी व्यवहारिक रूप से व्यभिचार नहीं किया, Out of all the nations, God chose us. कि इस संसार के तमाम देशों में परमेश्वर ने केवल हमें चुना है। And so, can you imagine this danger that they were in? Jesus is saying that's the wide road to destruction. और क्या आप कल्पना कर सकते हो उस खतरे का जिसमें वह है जहाँ पे वे एक चौड़े मार्ग में है। You notice the population of the world. आप जो इस संसार की जो जनसंख्या है क्या आप उसकी कल्पना कर सकते हैं? Yeah, there are some atheistic countries. कुछ ऐसे देश है जो किसी भी जो नास्तिक देश हैं, But mostly everybody is religious. पर सभी लोग धर्मी हैं। And so, is Jesus saying that the broad road is so broad that so many people are going in that direction? तो क्या प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि चौड़ा फाटक इसलिए चौड़ा फाटक क्योंकि बहुत से लोग उसमें जा रहे हैं? Yes, Jesus is saying the gate is wide and the road is broad. और हाँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वह फाटक चौड़ा है और मार्ग सरल है। Nobody disturbs you in that
road. कि कोई आपको परेशानी नहीं पहुंचाएगा उस मार्ग में। Oh, you have chosen this way of self-exaltation. आपने इस मार्ग को चुना है खुद की महिमा करने के लिए। Oh, this technique makes you feel good and righteous. इस विशेष प्रकार का कार्य आपको धर्मी महसूस कराता है। We have enough room. We have many lanes over here. हमारे पास बहुत सी जगह है, हमारे पास बहुत चौड़ा मार्ग है। And so Jesus is saying religion in the context, this empty outward religion is that broad way. और प्रभु यीशु मसीह कहता है ये जो बाहरी दिखावटी जो एक धार्मिकता है यह चौड़ा मार्ग है। The religion which says that I want a little bit of Jesus, but I want so much of my own way and my own wisdom. एक ऐसा धर्म जो कहता है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह तो चाहिए लेकिन मुझे खुद की भी धार्मिकता चाहिए, खुद के भी कार्य चाहिए। At the end of the day, it is the wisdom of God or the wisdom of this world. इस एक अंततः हम इस निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि या तो परमेश्वर का ज्ञान है या तो मनुष्य का ज्ञान है। The wisdom of God says very clearly in His Word that man is sinful and lost in Adam. परमेश्वर को जो ज्ञान है वह स्पष्ट रीति से हमें कहता है कि मनुष्य पापी है और कपटी है। That without Jesus Christ, man has no hope. कि प्रभु यीशु मसीह के बिना मनुष्य के पास और कोई आशा नहीं। That He is the God who took on human flesh. कि वह यीशु मसीह वह परमेश्वर है जिसने मनुष्य रूप धारण किया। And God's holiness will break you. और परमेश्वर की जो पवित्रता है वह आपको कुचल देगी। And only at the foot of the cross will you be received and forgiven and cleansed. और केवल उस क्रूस में आपको स्वीकारा जाएगा, आपको साफ किया जाएगा, आपको शुद्ध किया जाएगा। Only by a simple faith in Christ Jesus. कि केवल प्रभु यीशु मसीह में सरल विश्वास के द्वारा। And there, wherever that true faith is, there is repentance and hatred of sin. और जहाँ पे भी यह सच्चा विश्वास है वहाँ पे पश्चाताप है और पाप के प्रति घृणा है। And this life is going to be difficult and challenging. और यह जीवन बहुत ही चुनौतीपूर्ण और कठिन रहने वाला है। But He who began a good work in you will complete it until the day of Christ. पर वह जिसने आप पे भले कार्य का आरंभ किया है वह उसको उसकी अंत तक वह उसको लेकर The जाएगा। wisdom of the world says, hey, don't be so narrow-minded. और यह संसार का जो ज्ञान है वह कहता है कि इतना सीमित तुम इस संदर्भ में मत बनो। Don't say that there is only one mediator. ये मत कहो कि केवल एक मध्यस्थ है। Don't say that there is only one way of salvation. ये मत कहो कि केवल एक ही उद्धार का मार्ग है। Don't paint mankind with such a sinful tendency and sinful nature. मनुष्य को एक बहुत ही पापी और कपटी के रूप में प्रस्तुत मत करो। And so at the end of the day it boils down to this. एक दिन के अंत में यह निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। The wisdom of God that is in the scriptures or the wisdom of this world. कि या तो परमेश्वर का ज्ञान कि या फिर मनुष्य का ज्ञान। And so even today this wide road is being tightly packed and it's doing well, thriving. और आज भी यह जो चौड़ा मार्ग है वह बहुत ज़्यादा भीड़ से भरा हुआ है और लगातार उन्नति करते जा रहा है। People are saying that just because I am born in a Christian family, I am already a citizen almost of heaven. और लोग यह सोचते हैं कि यदि मैं मसीह घर में पैदा हुआ हूं तो मेरा आधा पैर ऑलरेडी पहले से स्वर्ग में है। And so many Christian disciplines and habits I have been raised up with. और मैं बहुत से मसीही जो नैतिकता है उसके साथ पला बड़ा हूँ। And so many activities of the church I have been regular and the church needs me so much. और बहुत सी चर्च की गतिविधियों में मैं शामिल हुआ हूँ, चर्च को मेरी ज़रूरत है। But sadly, Jesus is saying no, there is only one narrow gate and there is only one narrow way. लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि केवल एक ही सकरा फाटक है और केवल एक ही सकरा मार्ग है। The Bible many times just comes down to two things. और कई बार जो वचन है वह केवल दो बातों में ही सीमित रह जाता है। Born of the flesh is flesh, born of the spirit is spirit. कि जो शरीर का जो पैदा हुआ है वह शरीर तक ही सीमित है और जो आत्मा से पैदा हुआ है वह आत्मा तक ही सीमित है। Children of darkness and children of the kingdom of the light.
अंधकार के पुत्र और ज्योति के पुत्र। And so, the people on the broad way are those who have never personally seen the light of the glory of Jesus in the gospel. और वे जो चौड़े फाटक में उन्होंने कभी भी प्रभु यीशु मसीह और उसके सुसमाचार की महिमा को नहीं देखा। Never experienced what it means to be born again. उन्होंने कभी यह अनुभव नहीं किया कि नया जीवन प्राप्त करना क्या होता है। They are walking in Adam and not in Christ. वे आदम के मार्ग पर चल रहे हैं, ना कि प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर। And so Jesus is saying there is a wide gate, an inviting gate and a broad road. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह चौड़ा फाटक है जो और चौड़ा मार्ग है जो आपको आमंत्रित करता है, That leads to destruction, it says. जो विनाश को पहुंचाता है। Sadly, there are some teachers today, even on TV and YouTube, who twist the scriptures. आज भी दुखद रूप से जो हमारे YouTube है या टीवी है उसमें ऐसे प्रचारक पाए जाते हैं जो वचन के साथ छेड़खानी करते हैं। Joseph Prince, he's becoming so popular, especially in the northeast. जो नॉर्थ ईस्ट में जो जोसेफ प्रिंस है वो बहुत ही प्रचलित है। He talks about this verse that this life is in the temporal a blessed life, and destruction is not eternal destruction, he says. और वह इस पद के संदर्भ में कहता है कि यह जो मार्ग है वह एक टेम्पररी मार्ग के रूप में है, लेकिन ये जो विनाश है वह अनंत विनाश नहीं है। You can be on the broad road, he says, but you can still experience destruction. तुम इस चौड़े मार्ग में रह सकते हो और एक्सपीरियंस Destruction which is emotional or physical destruction. और या फिर तुम एक जो भावनात्मक विनाश है उसका अनुभव कर सकते हो। You can belong to Jesus and be saved but still be on the broad road. कि तुम प्रभु यीशु मसीह के हो सकते हो लेकिन तब भी तुम चौड़े मार्ग में चल सकते हो। And there are others who say that, hey, in light of God's wonderful nature and his loving nature, how can he be somebody who puts people in eternal torment? और कुछ प्रचारक ये कहते हैं कि जिस रीति से परमेश्वर का प्रेमी स्वभाव है वह कैसे क्या लोगों को अनंत विनाश में झोंक सकता है। And so at the end of our life, our soul, or the soul of unbelievers will disintegrate, will just be no more. तो इस जीवन के अंत में जो अविश्वासी की आत्मा है वह समाप्त हो जाएगी, वह नहीं बनी रहेगी। But the Bible is clear. This verse is talking about in contrast with eternal life. लेकिन यह जो पद है वह अनंत जीवन के संदर्भ में बात कर रहा है। And 2 Thessalonians 1 and verse 9 says, पहला थिस्सलुनीकियों 1 उसके अध्याय उसके पद 9 में वह कहता है, when Jesus returns, though his enemies shall be punished with everlasting destruction. पद 9 में वह कहता है कि क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका अध्याय 1 पद 9, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। Eternal destruction from the presence of the Lord. परमेश्वर के उपस्थिति से दूर होकर अनंत विश्वास का दंड पाएंगे। Listen to Jesus' own words in Matthew 25 and verse 46. प्रभु यीशु मसीह के हम वचन को सुने मत्ती अध्याय 25 में। And these shall go away into everlasting punishment. और ये लोग अनंत दंड को प्राप्त करेंगे। In Mark 9 and verse 44, where the worm dies not and the fire is not quenched. कि एक ऐसी आग जो कभी समाप्त नहीं होगी और उसका जो तपन है वो कभी कम नहीं होगा। The broad way is inviting. जो चौड़ा मार्ग है वह आमंत्रित करता है। Nobody disturbs you. कोई आपको परेशान नहीं करेगा। Your conscience is at ease. आपका जो बुद्धि है वह एकदम आराम से चलेगी। There is no trembling, there is no fearing the judgment of God. कि परमेश्वर का जो न्याय है उससे डरने की इस मार्ग में आवश्यकता नहीं है। God is more like a genie for health, wealth and prosperity. जो परमेश्वर वह उस जीनी के जैसा है जो आपके जरूरतों को पूर्ति करेगा। He only comes at important junctures in your life. वह केवल विशेष समयों पर ही आपके जीवन पर आएगा।
जाएगा। But Jesus is very clear here that that road leads to destruction. लेकिन प्रभु यीशु मसीह बहुत स्पष्ट रूप से हमें ये कहते हैं कि यह जो मार्ग है वह आपको विनाश की ओर पहुंचाएगा। Destruction forever. यह एक ऐसा विनाश जो अनंत विनाश है। And we know in that parable that that rich man and Lazarus, that man was wanting for one drop of water to be put on his tongue. और हम उस लाजरस और उस धनी व्यक्ति की कहानी को जानते हैं जहाँ पे वह धनी व्यक्ति केवल एक बूंद पानी की मांग कर रहा था। And so the Savior is full of truth. The Savior is full of love here. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सत्य और प्रेम से भरपूर है। He's saying, enter today by the narrow और gate. वह हमसे कह रहा है कि आज ही उस सकरे फाटक से और उस सकरे मार्ग में प्रवेश करो। Because there is a wide and an accepting gate and way. क्योंकि एक ऐसा मार्ग है जो आपको आमंत्रित कर रहा है। That way you can continue in your covetous way of life. एक ऐसा मार्ग जहाँ पे आप अपने लालच भरे जीवन में बने रह सकते हो। In that way you can continue your immoral way of life. एक ऐसा मार्ग जहाँ पे आप अपने अनैतिक जीवन को जारी रख सकते You हो। don't have to worry about the battle within and fighting the battle in your heart. और उस मार्ग में आपको आपके आत्मा और आपके मन के जो संघर्ष है उससे जूझने की आवश्यकता नहीं As है। long as you paint your outside life well, you are a wonderful person on that way. जब तक आप अपने आप को बाहरी रूप से अच्छे रीति से प्रस्तुत करोगे आपका उस मार्ग में स्वागत है। But the Savior's words, in very truthful way, he says, the end is destruction. और लेकिन यीशु मसीह कहते हैं बहुत ही स्पष्ट रीति से कि वह मार्ग विनाश को पहुंचाएगा। So this morning, let us look at that sobering motivation. और तो आज की सुबह हम इस गंभीर प्रोत्साहन पर विचार करें Am I only a namesake Christian this कि morning? क्या मैं केवल एक नामधारी मसीही हूँ, That I know the outside ways and the outside stickers and the outside songs. कि मैं बाहरी रूप से इस सुसमाचार को जानता हूँ और अच्छे गानों को जानता हूँ और अच्छे कार्यों को करता हूँ, But inwardly I have not come from in Adam to in Christ. लेकिन आत्मिक रूप से मैं आदम से प्रभु यीशु मसीह में नहीं आया And हूँ। so Jesus is saying, I am the city of refuge this morning. Enter into me. तो आज प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि मैं वह सुरक्षा का नगर हूँ जहाँ तुम प्रवेश करो, वहाँ तुम सुरक्षा को पाओगे। In verse 14 we see the second motivation, पद 14 में हम दूसरे प्रोत्साहन को पाते हैं and it's a more positive motivation. और यह एक सकारात्मक प्रोत्साहन है, Enter in because the gate is narrow and the way is hard. क्योंकि कि उस फाटक से प्रवेश करो क्योंकि वह कठिन है और वह जीवन को पहुंचाता है। It doesn't sound exciting in the beginning. और यह हमें प्रोत्साहित नहीं करता प्रारंभ में। A narrow gate, यह एक सकरा फाटक है and there are few walking in that way. और केवल कुछ ही लोग हैं जो इसमें चल रहे हैं। And the way itself is narrow, and through the turns and all, it's going to be very constricted. और एक तो मार्ग बहुत सकरा है और बहुत से मोड़ भी है उस मार्ग में। But when we see the verse in its completion, it says it leads to life. लेकिन हम इस पद को उसकी परिपूर्णता में देखेंगे तो हम पाएंगे कि वहाँ लिखा हुआ है कि यह जीवन को पहुँचाता है। And so the narrow gate and the narrow way is this. तो सकरा मार्ग और सकरा फाटक यह है। In Colossians, Paul says, you received Christ as Lord, now walk in him. कुलुसियों की पत्री में पौलुस कहता है कि तुमने मसीह को स्वीकार किया है, अब उसके मार्ग में चलो। In the beginning, we are so convicted and we want only a savior. प्रारंभ में हम हमारे पापों से जिस रीति से पापों के साथ हमारा सामना होता है हम यह प्रयास करते कि हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता But है। that same savior is Lord. लेकिन वही जो उद्धार करता है वह प्रभु भी है। The Saul is persecuting the Christians and he falls down from his horse. जो शाऊल है वह लोगों को सताव करता है और वह घोड़े से गिर जाता है। And at that moment, he knows that Jesus has come and appeared before him. और उस समय में वह इस बात को पहचानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया है। And all that Stephen was preaching is true. और वे तमाम चीजें जो स्टीफन प्रचार कर रहा था वह तमाम बातें सत्य थी। And then he says,
what would you have me to do, Lord? और फिर वह कहता है कि हे प्रभु, आप क्या चाहते हो कि मैं आपके लिए करूं? Yes, salvation is absolutely free. That entry into that city of refuge is absolutely free. कि अवश्य कि यह निश्चित है कि उद्धार हमारे लिए सेत मेत में या फ्री हमें दिया गया है, लेकिन But as you enter into the Savior, you realize He's also Lord of all things. लेकिन जैसे ही आप उस नगर में प्रवेश करते हैं, आप यह भी पाएंगे कि उस नगर का जो प्रभु है, जो आपका उद्धार करता है, वह प्रभु भी है. And praise God that in union with Him, God changes our hearts' desires, that we long for His ways now. और परमेश्वर की महिमा हो कि जब हम मसीह के साथ एक होते हैं तो हम उसके मार्ग में चलने के लिए और इच्छुक होते हैं. That Samaritan woman at the well, वह जो सामरिया की जो स्त्री थी, by simple faith and by pure grace, it has been revealed to her that Jesus is the Messiah. एक सरल विश्वास के द्वारा, सरल अनुग्रह के द्वारा मसीह ने उसे दिखलाया कि मैं वह उद्धार करता हूं. But the fruits begin to abound in her life immediately. लेकिन उसी समय से वह जो आत्मा के फल है उसमें दिखाई देने लगे. And we cannot imagine her going again to the seventh husband and the eighth man. और हम यह कल्पना नहीं कर सकते कि वह वापस उस सातवें पति के पास या आठवें पति की खोज में लगेगी. Because that Messiah anointed one is also the king of all things. क्योंकि वह जो मसीहा है वह उन तमाम चीजों का भी राजा है. And so the narrow gate and the narrow way is the way of discipleship. तो वह जो सकेत फाटक है और सकेत मार्ग है, वह शिष्यता का मार्ग है. And Jesus is so honest. He's saying that this is a narrow exclusive way. और प्रभु यीशु मसीह बहुत ही स्पष्टता के साथ और ईमानदारी के साथ कहता है कि वह एक सकरा मार्ग है. Because he knows that he's the only way and apart from him there is no salvation. क्योंकि वह जानता है कि केवल वही एक मार्ग है और उसके सिवाय और कोई उद्धार का मार्ग And नहीं he है. knows that only he has the true righteousness that springs from our heart. क्योंकि वह जानता है कि केवल वही एक धार्मिकता है जो हमारे अंदर से जिसे वह हमारे अंदर से बाहर निकाल सकता And he है. knows that springs of living water only he can give in our heart. केवल वही है जो जीवन के जल को हमें दे सकता है. And only he can lead us in the highway of holiness. केवल वही है जो हमें पवित्रता के मार्ग में आगे बढ़ा And सकता है. he's so honest that he says the way is hard or constricted. और वह स्पष्टता और ईमानदारी के साथ कहता है कि यह मार्ग जो है वह कठिन है और बहुत ही सकरा है. We cannot come with all our baggage. हम हमारे ढेर सारे सामानों के साथ यहाँ नहीं आ सकते. There are doctrines in the Bible which will humble us. बाइबल में ऐसे सिद्धांत है जो हमें नम्र बनाएंगे. I want salvation by grace alone, but also my works along with me in this road. कि मुझे अनुग्रह के द्वारा उद्धार तो चाहिए, लेकिन मेरे कार्य भी मुझे चाहिए मेरे साथ. I want the Lord and I feel so wonderful with His people, but Monday to Saturday I want to live my moral life. कि मुझे मेरे मसीह की और मसीही लोगों की तो आवश्यकता है, लेकिन बाकी के 5-6 दिन मैं अपनी नैतिक जीवन को जीऊंगा. Our dreams and everything is just thrown outside that gate. जो हमारे तमाम सपने हैं वह उस सकरे फाटक से बाहर फेंक दिए जाते हैं. We see only that pearl of great price. हम केवल उस उत्तम इनाम की ओर देखते हैं जो हमें इस मार्ग के अंत में मिलने को. We see that treasure that is above value of all other things. हम उस खजाने की ओर देखते हैं जो हमारी जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसका कोई मूल्य नहीं. And we have that joy of finding Jesus as our treasure. और हम प्रभु यीशु मसीह को उस वह जो खजाना है उसके रूप में हम पाते हैं. Nevertheless, the narrow way is hard. लेकिन यह जो सकरा मार्ग है वह बहुत कठिन है. Just ask the Thessalonians. जो थेसलोनिकियों की जो कलीसिया, आप उससे पूछें. In 1 Thessalonians, पहला थेसलोनिकियों में Paul was concerned. As soon as they heard the gospel, there were afflictions in their life. पॉल बहुत चिंतित था कि जैसे ही उन्होंने सुसमाचार को सुना, उनके जीवन में कठिनाइयां आने In लगी. chapter 3 verse 3, he sent Timothy back to them. पद 3 में, अध्याय 3 के 3 में हम पाते कि वह वापस तिमोथी को भेजता है. And Paul's concern was, are you going to be moved by these afflictions? और पौलुस का यह चिंता थी कि तुम इस
कठिनाइयों के कारण भटक जाओगे क्या? And look at verse 3. For you yourselves know that we are destined for this. लेकिन पौलुस पद 3 में कहता है कि तुम जानते हो कि हम इसी के लिए हम ये कठिनाइयाँ हमारे लिए निश्चित है। We should show the health and wealth people these kind of verses. भरभराट। हाँ जो समृद्धि। हाँ जो समृद्धि का प्रचार करते हैं हमें उन्हें यह पद दिखाना चाहिए। And then in chapter 3 verse 4 he says that we told you beforehand that there are afflictions. और पद 4 में वह कहता है कि हमने पहले ही तुम्हारे यहाँ जब थे हमने कहा था कि क्लेश उठाने पड़ेंगे। In verse 5 the tempter is there ever to tempt you. पद 5 में वह कहता है कि परीक्षा करने वाला जो है वह तुम्हारी परीक्षा अवश्य लेगा। And so as soon as we walk in this narrow way the world is there constantly bombarding us. जैसे ही हम सकरे फाटक में प्रवेश करते हैं हमारे पीछे संसार है जो हमें हमारे ऊपर आक्रमण करता है। In every ad, in every serial, in every movie the agenda is there. हर एक प्रकार के प्रचार में हर एक प्रकार के कार्यक्रमों में हम देखते हैं कि इस प्रकार का सांसारिक बातों को प्रस्तुत किया जाता है। Live for the material things, live for your own pleasure. अपने आनंद के लिए और सांसारिक वस्तुओं के लिए जीवन को जियो। And this way is hard because this remaining sin we have to battle. और ये मार्ग कठिन है क्योंकि हमारे अंदर जो बचा हुआ पाप है हम उससे संघर्ष करते हैं। And difficult relationships in family and in church is a part of this way. जो हमारे परिवार में कठिन रिश्ते हमारे चर्च के भीतर में आपस में कठिन रिश्ते इस कठिन मार्ग की सत्यता है। And then we are in a spiritual warfare as well. और हम एक आत्मिक युद्ध में भी हैं। And there are these discouraging days and these dark days. ऐसे दिन भी आते हैं जो अंधकार भरे दिन है जो हमें निराश करते हैं। Where we are tempted to wonder whether we are on the right way. जहाँ पे हम यह सोचने में विवश हो जाते कि क्या मैं सही मार्ग में चल रहा हूँ। And there is brokenness on this way. यहाँ पे बहुत ही हताशा भी है। We take one great wonderful step forward in our Christian life and then there is failure and sin and repentance and brokenness. हम मसीही जीवन में एक बड़ा कदम उठाते हैं फिर हम पाप और पश्चाताप और हताशा से भर जाते हैं। Nevertheless, he who began this good work will complete it. लेकिन जिसने आप में ये भले कार्य को शुरू किया है वह उसके समापन तक उसको लेकर जाएगा। The joy is that Jesus is with us. जो हमारा आनंद यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ And है। that the small group of pilgrims that God has given us in our life. और हमारे जीवन में एक छोटा सा यात्री का समूह है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। And then on this pilgrim life, at the end of it, there is the fullness of everlasting और life. यह यात्री भरे जीवन में के अंत में परिपूर्णता भरा जीवन है। This life has already begun in the believer. यह जो जीवन है वह चालू हो चुका है एक मसीही जीवन मसीही विश्वासियों के अंदर। But he will enter the fullness of what it means to know God. लेकिन वह इसकी परिपूर्णता में भविष्य में पहुंचेगा। He will enter the fullness of joy that knows no limits. वह एक ऐसे आनंद की ओर पहुंचेगा जिसका कोई अंत नहीं। He will enter the fullness of joy of serving Jesus forever. वह प्रभु यीशु मसीह को आनंद के साथ उसकी सेवा करने के भाव में पहुंचेगा। A place where there is no remaining sin and there is no curse and there is no persecution and there is no opposition. एक ऐसा समय जहाँ पे फिर कोई सताव नहीं होगा, जहाँ पाप नहीं होगा, जहाँ पर किसी प्रकार का निराशा नहीं होगी। So Jesus is saying that that road leads to life. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यह जो मार्ग है वह जीवन को पहुंचाता है। This morning, are you regretting that you became a disciple of Jesus Christ? क्या आज के समय आप उदास होते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं? Are you sad that there are so many things you have to face in this Christian life? क्या आप इस बात को विचार करके दुखित होते हैं कि बहुत से कठिन चीज़ों का मसीह जीवन में आपको सामना करना पड़ेगा? Matthew Henry says the gate is straight and the way narrow and uphill. मैथ्यू हेनरी कहता है कि यह मार्ग जो है वह सकरा है और फाटक जो है सकरा है और इसमें चढ़ाव भी है। But 1 hour in heaven will make amends for it. लेकिन स्वर्ग में केवल 1 घंटा जो है वह इसकी
इस तमाम चीज़ों को परिपूर्ण कर देगा। All your lifetime of discipleship and all the failures and all the struggles and all the heartaches we'll forget in 1 hour. जब हम स्वर्ग में केवल एक ही घंटा बिताएंगे तब ये तमाम दुख और तमाम सताव और तमाम जो संघर्ष है हम इन तमाम बातों को भूल जाएंगे। We'll enter that fullness of joy in the presence of our triune God. हम त्रिएक परमेश्वर की सहभागिता में उस अनंत आनंद को प्राप्त करने पाएंगे। Jesus says those are few who find it. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि केवल थोड़े ही हैं जो इसे पाएंगे। In my mind, I'm wondering, Revelation says that there is a uncountable number of saints. प्रकाशित वाक्य में यह लिखा गया है कि बहुत से अनगिनत लोग स्वर्ग में पाए जाएंगे। But I guess in light of the world population throughout all the ages, it seems like there are few who find it. लेकिन इस संसार के प्रारंभ से अंत तक जितनी जनसंख्या रहेगी उसके संदर्भ में जब हम देखेंगे तो केवल थोड़े ही हैं जो इस जीवन को पाएंगे। And this morning, as a believer, do you remember that you were on this highway to hell? आज की सुबह क्या आप इस बात पर विचार करते हैं कि आप इस चौड़े मार्ग में थे And you had no desire to look at the narrow way and want the narrow way. और आप में कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि आप इस सकरे फाटक और सकरे मार्ग को चुने। You did all you could to oppose or hide away from anybody who would call you to the narrow way. आप उन लोगों से और उन बातों से अपने आप को छुपाते थे जो इस सकरे फाटक की ओर आपको लेके Do जाए। you realize that only grace pulled you from this broad way into the narrow way? क्या आप यह इस बात पर विचार करते हैं कि केवल अनुग्रह ही है जिसने आपको इस सकरे फाटक की ओर लेकर आया? This morning, if you are just coasting in the broad way, Jesus is saying, I have life for you, life eternal. यदि आज आप चौड़े मार्ग में हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको कहता है कि सकरे फाटक की ओर आए, वहां मैं तुम्हें जीवन को दूंगा। This morning, if you are discouraged with this hard life of discipleship, look up, it leads to life eternal. यदि आज की सुबह इस शिष्यता भरे जीवन से आप निराश है तो आप प्रभु यीशु मसीह को देखें जो आपको जीवन और आनंद की अनुभूति देगा। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, हम धन्यवाद देते इस सुंदर वचन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया और उस प्रोत्साहन के लिए जो उस सकरे फाटक और सकरे मार्ग में प्रवेश करने के द्वारा हम पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उस उत्तम आशा के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में है। प्रभु जी की इस मार्ग में चलने के द्वारा हम जीवन को पाते हैं और होने दीजिए कि जैसा आपका वचन कहता है कि यह मार्ग कठिन है और यह इस मार्ग में संघर्ष है। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, उसकी आत्मा हमारे साथ है जो हमें प्रोत्साहित करता है, जो हमें निरंतर हमारे विश्वास में और इस मार्ग में बनाए रखता है। होने दीजिए कि हम इस मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने वाले हो सके और जब हम निराश होते हैं, जब हम हताश होते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें और उस अनंत आनंद की ओर देखें जो हमें हमारे इस जीवन के और इस मार्ग के अंत में मिलने को पाएगा। इस सुंदर वचन के लिए और उस सुंदर आशा के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में आपने हमें दिया है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Amen.